Hi, hello everyone. Uh, my name is Ashish, and we are going to do a podcast with our guest Santosh. And yeah, so I did my MBBS from Priolsky Research Medical University, Russia, and right now I am doing my internship here in Belgium, JNMC Belgium. Uh, right now, our guest will introduce himself in few words. Yeah. Yeah, so my name is Sasmit Santosh. I am from Kerala, specifically Kottayam. I did my internship I did my university in Odessa National University, that is in Ukraine. And right now I'm an intern at Kasturba Medical College, Mangalore. And yeah, Yeah. Can you tell me why you chose the Ukraine and the university you chose? What stood out for you? hmm. So I joined my university in 2018. And at that time, the situation was pretty nice. My university was established in the Soviet Union time. It's like 1900s. So, and it was quite popular, even in Eastern European side. Mhm. And being on the more, popular and on the affordable side, it was a good choice at that time until the war hit. Yeah. What changes So, everything? Yeah. yeah, it changed everything. But even I did my fifth and sixth years, my final years and everything over there itself. I didn't Over there. take a transfer. Okay. Yeah. Can you tell me which city it was? Odessa. It's a southern port city towards the Okay. western side of the country, southwestern side. Okay. So it's not on the border side. So you were. It's a port side, so we do get frequent attacks from the sea, Uh-huh. Black Sea. Oh. Yeah. And yeah. Like how you got to know about the college and how the admission process was, and tell us more about this part. Okay, so I was made familiar by my friend who actually joined a year ahead. I had dropped a year for coaching. Mm-hmm. So he had joined the university a year early, and everything was fine. Everything was going pretty good. And while I was quite unfortunate with NEET, and I had asked some suggestions about studying abroad to my friend, so he recommended me this college, Mm-hmm. which yeah, eventually that's how I ended up there. And I contacted some agents who were able to help me with some documentation work, Mm-hmm. and yeah, they were there with me to this till the end. Okay. And yeah, can you like tell me about the fee structure, like how much is university fee, hostel fee, and the Mhm. other finance finances final, yeah, there. So the university fee starting from first year to sixth year, it kept on increasing by a little bit. So first year it started with 5,300 per year till six thousand $5,300 per year. dollars per year. Yeah, and towards sixth year it was around 6,100 something per year. But it was mainly the increase was due to the war and inflation that was hit. Mm-hmm. But otherwise, I believe it was supposed to be on a margin of 5,800 to $6,000 per year by the final year. Mm-hmm. And living cost was moderate. It was fine enough, except towards the last 2 years, it was a bit difficult due to inflation, but Okay. was fine, manageable. Okay. While hostels are quite cheap, especially initially they were provided by the university, like student housing. It Mm-hmm. was cheap, like you pay 800 or $600 per year, Per which year. was quite convenient. It had everything, Mm-hmm. but then like it's a bit jam packed. It's a bit crowded. So by third year, I shifted out to my own. I took an I rented an apartment near to the university like hospitals, and a bit towards the center of the city, Okay. so I could like access buses if I want to go out. I could go out, Mm-hmm.
and a little bit based on convenience. So apartments would cost somewhere around $100 to $150. Depends on the number of rooms as well, Mm-hmm. and on a usual cost per head, $100 to $150. Okay. Then what else? Transport and everything was cheap initially, Mm-hmm. like I War it. mentioned. Yeah. Yeah, that changed the whole dynamic in the living costs and lifestyle. Yeah. Because everything, maybe all the exports and all got. Yeah, That's it did. Even fuel prices and commodity like oil, mm, even milk. yeah. I do remember milk being 20 got bumped to 50, Mm, like a small packet. yeah. So even bus initially was just 5 grivnas, Mm-hmm. and by the time I was coming back, it was 15. So Okay. that's the Yeah. amount that got bumped. But Mm, it was fine though. We initially thought people might be a bit difficult to deal with, but no. They were more, everybody's busy in their own stuff. So even same yeah. thing. So, yeah. So right now, if any student is planning to take there, the hostel will cost him around $800 per year, and yeah, and the monthly charges for food and travel, it will cost around how many dollars? Food, Is excluding rent and bills, sorry, if he's in hostel, yeah, that would take around $100 on a minimum. $100. Yeah. Yeah, Then. and because it will become a necessity. Mm, Because if he wants to have decent, if he can cook, if mm-hmm, he knows how to cook, he can save a lot of money. mm-hmm. But if you're going for mess, yeah, it's fine. But then, there's nothing better than, having cooked food and Yeah. mess food. Mm. The mess food is we can't eat that, and the everything like our time we have to manage it because we Exactly. Yeah. after the classes and everything. Yeah. Yes. Mhm. About the teaching style and curriculum, they teach in English, of course. That's why. Yeah. Yeah. So tell me about So, some. like you said, it's an English course. Mhm. And teaching style usually it requires a lot of self-study. Like they won't spoon feed you a lot, but then they'll help you out if you have doubts or they'll help you navigate through. But otherwise, it's mostly self-study. You have to put your own effort into it, like whatever subject to whichever. But if you need help, you can always ask them. But otherwise, I don't think there's a lot of you know a lot of voluntary help from their side because there's a little bit of a language barrier. Mhm. So even for them, it requires it requires the student to take the initiative to clear doubts or even to go deeper into a topic. And Okay. curriculum it's a European curriculum. So first 2 years are usually theoretical or fundamental medical subjects, and towards from the third year, I believe we have clinics that start. Mhm. Okay. And like how the classes they will have they will there are lectures and then the practical classes, right? Yeah. Yeah. So classes, like I said, so first 2 years we have fundamental classes that includes like basic subjects like anatomy, local language, Mhm. then Latin, biochemistry, histology, pharmacology, all of these. Those subjects which one mainly the theory part that you have to know aage Mhm. ke liye. So all those subjects are there for 2 years. So in this period, it's other than for anatomy, you won't really be seeing anything close to clinics. But Mhm. then from third year, like surgery और थोड़ा सा subject ऐसे आएगा that is more clinically oriented. This way you need to see the patient, you need to be able to like have an idea how to like manage a certain type of situation or disease. You'll start learning about how certain medications work, side effects, and you will eventually start seeing cases. So this starts from third year. Third year. So yeah, There is and good clinical exposure also. So it's if it starts from the third year. yeah, and mainly because by third year you're kind of familiar with a lot of the technical terms.
Mm-hmm. whether it's medicine, names of tablets or drugs or medicines, Mm-hmm. to even diseases. So by the time you're in like fourth year or fifth year, you just know if the teacher says about a disease and he shows a patient, you know the rest of the things. You're familiar with it. Mm-hmm. Yeah. And how was the experience like going from India to the new culture there? And Oh, yeah, it was initially a culture shock, but then it took me, I think, a few months to actually get, used to the whole thing. They don't, especially the food. Um, I think the initial part, it's an Orthodox country. It's an Orthodox Christian country, so they have a lot of pork, beef, and being in Eastern Europe, they don't use a lot of masalas or anything. mm, The most they use is salt and pepper. yeah, And well, the language, so it's Ukrainian, and southern side of Ukraine, they speak a little bit of Russian. So I Russian. had to learn both the languages initially. Mm-hmm. So, and English to some extent, the younger generation people they Knowledge. speak, Mm. and while the older generation they preferably converse in like Russian or Ukrainian. Well, it's not difficult, but then once you get a hang of either one of the languages, you just get it. Yeah. And That's about the the yeah. And no about the weather? weather. Oh, bro. Like towards winters, it's very cold, and Mm-hmm. peak summers are very hot. So it's like a spectrum. Oh, the Yeah, summer in used to get hot like India. no, not like in India. It's just that in winters you get acclimatized to the cold over there. Cold. So after spring, then comes summer. Summer में तो मतलब it goes up to 30. Usually that's it max. But Okay. then since you're used to 15 degrees or 20 degrees, when it Mm. goes to 30 in summer, it becomes very hard to survive. तभी मतलब even when we come back to India, since I'm in Kerala, it's humid and it's hot. Mm. So it used to feel very hot for me initially, the first few days, till my body is used to it. Yeah. And how did you make your friends there and your support network around you? There were many Indian people with you. Yeah, yeah. Actually, I think my agency that I told you, so we traveled together initially, and we were grouped into a single same group Mm. until fourth year. That's when we got reshuffled into like a few mixed with a few Arabs and stuff. So there were a lot of Indians initially, Mm-hmm. um, and it was quite fun. We had a lot of diversity, like Mm. a lot of people from north, a lot of people from south, Delhi, Mumbai. कुछ लोग गुजरात से भी था, कश्मीर से भी लोग था, and we had Mm. people. I think in my subgroup we had people from Tamil Nadu, Kerala, Andhra. I think there was two from Karnataka as well. So Mm. it was a whole diversity. So it was quite interesting. And like Vesa, that's how I got, an idea about different languages, how to talk and converse. या हिंदी भी तुम्हें सीखना पड़ेगा पड़ा होगा आगे उधर ही सीखे होंगे तुम हिंदी. या, हिंदी भी हाँ ऐसे ही सीखा. हम्म. वैसे बात तो करना ही पड़ेगा आगे तो, क्योंकि इतना हम्म. साल साथ ही रह रहा है, सब like, साथ मिल रहा है, तो उसकी वजह से हम्म. सीखना ही पड़ा. मेरे भी फ्रेंड्स वैसे थे मतलब जो जो साउथ इंडियन थे उनको उतना हिंदी बात नहीं करते थे वो लेकिन 6 ईयर हो जाने तक पूरा मतलब परफेक्टली बात करने कर लगे थे वो. Same thing with me too. एंड तुम्हारे दूसरे कंट्री से भी आए होगे लोग रहेंगे ना उधर. So, कौन से Yeah. कंट्री से आते काफी कंट्री से था, मतलब वी हैड लाइक पीपल फ्रॉम इजिप्ट, मोरक्को, ट्यूनीशिया, इजराइल से भी था. एंड इनिशियली दे वर एक्सचेंज स्टूडेंट्स. मतलब एक दो बार मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ प्लेवन बल्गेरिया से एक स्टूडेंट से मिला था. वो कोई क्लिनिकल एक्सचेंज प्रोग्राम इरास्मस प्लस सुनना होगा, तो उसका वजह से आया था. मतलब बट देन दे ओनली स्टेड फॉर अ मंथ और सो. तो बीच बीच में आता रहता है कुछ स्टूडेंट्स बाहर से भी. एंड हमारा खुद यूनिवर्सिटी का खुद का स्टूडेंट्स में तो वी हैव अ लॉट ऑफ अरेबिक स्टूडेंट्स. देयर आर अफ्रीकन स्टूडेंट्स फ्रॉम like Nigeria, some from Sudan, and I think there was yeah, no,
I've met these. No, Zimbabwe. So yeah, those were like there's more, but I just can't get them at the moment. There was a lot Yeah, of people, a lot of yeah, varieties. there are lots of Like it people. was a like I mentioned, it was a big diversity. So we were all mixed up, Mm. It's and good. It helps to speak. It gives an opportunity to be friends with. different Yeah, people yeah, from different mm, places. yeah. And the best part was whenever we had a festival, for example, um, when we had Eid. So we used to go to one of my other friends for iftar. We went to the mosque all together. We all went to the mosque for iftar. We and it was very nice. And there was this when it was holy, we used to invite our these friends Arabs as well. Like Mm, आजा, like come for yeah, holy. We'll show you mm, how it's done. So खाना वगैरह बहुत है. Even they will be introducing okay, even they will bring food as well from their side. It yeah. was a very fun, interesting बहुत ही way. Like बहुत ही अच्छा टाइम था वो। अभी yeah, इंटर्नशिप में थोड़ा मिस कर रहे हैं। उधर से इधर आने के बाद एक एफएमजी एग्जाम रहता है। वो एक हाँ, स्ट्रेसफुल पीरियड रहता है और उसके बाद ये थोड़ी हिक्टिक इंटर्नशिप रहती है। तो ये तो है. उधर हाँ मतलब उधर से बहुत ही अच्छा हम मतलब आए रहते हैं। इधर थोड़ा एडजस्ट होना में थोड़ा डिफिकल्ट होता है इनिशियली। Yes. ये तो है. मतलब मेरे लिए तो पास होने के बाद 6 महीने में आई थिंक 6 महीने लगा प्रिपरेशन के लिए एफएमजी. एंड लकीली गॉट ब्लेस आई पास्ड फर्स्ट अटेम्प्ट. तो बट वही है. मेरे काफी कुछ अच्छे दोस्त थे. मतलब इनका एक मार्क में हट गया. ये बहुत ही बुरा लगता है। मेरे भी दो दोस्त थे, उनका भी मतलब एक का 2 मार्क्स से एक का 3 मार्क्स से रह गया। वही मतलब हम्म, ऐसे लगा कि इट वाज बेस्ड ऑन लक बट है. थोड़े गलतियां मतलब थोड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह बहुत सारी चीजें रहती है मतलब लक हाँ, बहुत है. वेल एफएमजी वन थिंग फ्रॉम माय साइड ये कि uh, खाली एग्जाम का ही नहीं, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द माइंडसेट ऑफ द स्टूडेंट एग्जाम देते वक्त. हम्म, क्योंकि फर्स्ट हाफ शायद डिफिकल्ट होगा, बट देन हम्म, सेकेंड हाफ फर्स्ट हाफ का वजह से तू माइंड फटीग नहीं होना है. हाँ वो क्योंकि इम्पोर्टेंट। वो अंदर से एक लड़ाई है ना खुद से कि हम्म, हाँ भाई फर्स्ट हाफ मुश्किल था, मैं आई एम गिविंग अप, ऐसे नहीं. हम्म, सेकेंड हाफ चलो तूने 6 महीने भाई मेहनत किया है, चलो हम्म, भाई सेकेंड हाफ चलो आई ट्राई कर देता हूँ, बट हम्म, एटलीस्ट क्वेश्चन ठीक ठाक. हम्म, क्योंकि इनिशियल पीरियड तो थोड़ा वो सफोकेटिंग सी लगती है. क्योंकि फर्स्ट हाफ हम्म, काफी लोग मेरे को ऐसे कहा कि भाई फर्स्ट हाफ इतना मुश्किल था कि आई थॉट सेकेंड हाफ भी खत्म है. हाँ, तो वो मेंटली डाउन हो जाते हैं वो। वही उसके बाद जो नॉर्मली आता है वो भी भूल जाते हैं मतलब अच्छे से आंसर नहीं एग्जैक्ट करते। वही. क्योंकि काफी लोग मैंने देखा है बहुत पढ़ा हुआ है, मेरे से भी हम्म, ज्यादा. तो बट देन वही है, थोड़ा बहुत तो वो कॉन्फिडेंस है जो एग्जाम देते वक्त हम्म, वो गिर जाता है उस तक. हम्म, तो इफ दे कैन लाइक उसके लिए तो वही है, ओरिएंट योरसेल्फ, ट्रस्ट हम्म। योरसेल्फ एग्जाम देते वक्त बस. एग्जाम देते हुए भी और उससे पहले थोड़े एग्जाम्स मॉक एग्जाम्स भी देनी चाहिए हाँ, मतलब। ये तो वो तो एक्चुअली जरूरत है. हम्म, क्योंकि वही तो एक चीज है. मतलब यू कांट जज योरसेल्फ बिफोर द एग्जाम. इवन हम्म, इफ जीटी में अच्छा मार्क नहीं ला पाया, बट ठीक है. हम्म, फिर एक रिवाइज कर, रिवीजन इज की. हम्म, जितना ज्यादा रिवीजन और रिव्यू करेगा मतलब उतना बेहतर बेटर होगा ये हम्म, होल कॉन्सेप्ट. यस। एंड वो भी 5 घंटे बैठने का स्ट्रेंथ भी चाहिए, स्टेमिना हाँ, चाहिए वो भी, और फोकस ये है. अटेंटिव रहना है हर एक क्वेश्चन हम्म, पढ़ना। वो भी बहुत सारे चीजें एफएमजी की बहुत सारी एग्जाम के चीजें. बारे में। और अगला एक और वीडियो बना सकते हैं। अब इस पे फोकस करते हैं। नहीं तो हम वही बात करते जाएंगे। तो हाँ. हाँ, उधर हॉस्पिटल में जाने के बाद हम्म, मतलब इन हॉस्पिटल like they most of the older people they don't know the English language. At that हम्म. time you had to speak in either Russian or Ukrainian. यूक्रेनियन, या. Yeah, so I for I did learn the language काफी ठीक ठाक. mm-hmm, क्योंकि I had a lot of friends outside the university who were locals. So बच्चे नेबर्स और कुछ दोस्तों भी बनाए, तो मतलब खुद यूनिवर्सिटी का ही स्टूडेंट्स
पता नहीं उनसे मतलब यूक्रेनियन या रशियन में बात करने का कोशिश करता था। इसका वजह से मतलब मैंने सीख लिया था, तो ठीक ठाक। और तब वही फिर प्रोफेसर और टीचर्स ने हेल्प किया बहुत, क्योंकि वो बीच कभी इन केस कोई कुछ गलती हो गया बात करते वक्त, तुरंत वो ठीक कर देते हैं, like, ऐसे नहीं ऐसे। तो हम्म, वाज एक्चुअली नाइस तो। हम्म। हाँ, मेरे भी जो बहुत सारे फ्रेंड्स थे साउथ इंडियन, मतलब केरला से जो थे, उन्होंने क्या पता वो लैंग्वेज बहुत जल्दी सीख पाते हैं। ऐसा कुछ है क्या केरला में जो लैंग्वेज बहुत जल्दी पिकअप करती? नहीं ऐसे कुछ नहीं है, बस आई डोंट नो, लाइक आई गेस दे स्पेसिफिकली ईच एंड इंडिविजुअल के ऊपर होता है ना, दोस हु हसल दे आर यूज्ड टू हम्म, गेटिंग थिंग्स डन। okay. Like, tell me, like, you there they have the classes, Ukrainian or Russian classes in the curriculum for the first 3 years, right? या in the first 3 years. So you attended all those classes like proper अच्छे से? ठीक ठाक। हम्म, क्योंकि क्या होता है कि हम तो क्लासेस मतलब अटेंड करना मतलब एक टास्क ही होता है, तो उतना हम्म, ज़्यादा हमें लगता था कि बाद में लगा कि और थोड़ा अच्छे से सीखना चाहिए था हमें लैंग्वेज। और वो तो थर्ड ईयर फोर्थ ईयर वो होने के बाद पता चल रहा है, हमें भी बात करते थे मतलब थोड़ा थोड़ा, लेकिन और थोड़ा अच्छे से सीखते तो बहुत फायदा होता, उधर थोड़ा लोकल और जाकर बात कर सकते थे, ये कर सकते थे। बात है ना, पहले तो मेरे यूनिवर्सिटी में वी नीड टू हैव 100% अटेंडेंस, नहीं तो एग्जाम, यूनिवर्सिटी एग्जाम लिखना ही नहीं देते। इन हम्म, एवरी यूनिवर्सिटी 100% अटेंडेंस इज अ मस्ट। मस्त तो है। मतलब किसी भी तरह जो हम्म, क्लासेस है वो अटेंड ही करना है। तो हम्म, इन केस कोई दिन मिस हो गया तो वीकेंड यूजली सैटरडेज पे यू गेट अ चांस टू रीवर्क, हम्म, एंड नहीं तो कुछ और दिन आई थिंक आफ्टर क्लास एक परमिशन स्लिप लेना है डीन ऑफिस से, फिर वापस आके यू कैन रीवर्क इट। आई yeah. थिंक इट इज डिफरेंट इन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, तो आई हैव हर्ड डिफरेंट फॉर्मेलिटीज इन अदर यूनिवर्सिटीज। For my university also the same. It 100% attendance is must. हम्म। Yeah, and if not that, you have to go university office, dean's office, tell हाँ। you are absent. You have to pay, and then हम्म। you will get the permission to attend the class. Yeah. You have to attend the class, get attendance, then show that, then only you will be eligible to the sit for the final exam. Yeah, it's kind of same here. Yeah. So, and regarding the language, तो यही बात, मतलब फर्स्ट ईयर से ही आई हैड दिस इंक्लिनेशन टुवर्ड्स लैंग्वेज, मतलब सीखने का थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था। इंटरेस्ट था। तो तो मतलब वही इंटरेस्ट है। होना चाहिए मेनली। हाँ, इंटरेस्ट तो वो तो बिल्कुल होना चाहिए। हम्म, और एक तो टुवर्ड्स दी एंड आई थिंक फोर्थ या फिफ्थ तक मतलब एक जरूरत होता है, क्योंकि इनकेस तेरे को दुकान जाना होगा या हम्म, कोई ट्रिप पे जा रहा हूँ बाहर सिटी का, मतलब हम्म, कोई गांव जैसे जगह हो, मतलब ये नहीं तो पहाड़ पे, तो वहां हम्म, पे तो कोई बात ही नहीं करेगा इंग्लिश में, तो पता हम्म, ही होना है लोकल लैंग्वेज। सो इट यस, हेल्प्स अ लॉट। इट हेल्प्स अ लॉट। अगर कोई जूनियर हमारा देख रहा है उधर, सोच रहा है, तो थोड़ा फोकस करके सीख लीजिए लैंग्वेज, बहुत ही हेल्प होगा आगे जाके। बहुत। इवन इवन आई थिंक वापस आते वक्त आई वाज पासिंग थ्रू टर्की, तो हम्म, कुछ टूरिस्ट लोग हैं वो रशिया से था, हम्म, तो मतलब उनसे भी बात किया, इवन दे वर सरप्राइज्ड। ऐसे भी मतलब यू कैन ऑलवेज, इट्स योर ट्रम्प कार्ड, यू कैन ऑलवेज इम्प्रेस पीपल टू। या, या, एंड ओके, we'll come to the challenges. Did you face any challenges during your all 6 years apart from this war and COVID? Apart from war and COVID, Yeah. so since you would be a lot familiar, do you remember the winters, मतलब जब बर्फ नी Mm. हाइट तक गिरती, मतलब सुबह Yeah. सुबह उठना है, नेगेटिव में Mm. होगा वेदर, तो Yes. सुबह सुबह उठ के जाना है किसी भी तरह। Mm. क्लासेस तो किसी के लिए रुकता नहीं, वो दिन उठ के जाना है बर्फ उठ के से। जाना ही है। हम्म। तो वो एक था, लाइक द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू माय माइंड। और हम्म, इसका सर आई थिंक एवरी मेडिकोज नाइटमेयर इज फार्माकोलॉजी। हम्म। इवन जितना भी पढ़ो वो दिन भूल ही जाता हाँ, है। भूल ही जाता है, वो तो है। एंड एग्जाम के लिए, हाँ। वो वही एग्जाम पे इट्स एन इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट,
बट देन हम्म क्या करूँ भूल जाता है। वही। फार्मेकोलॉजी थर्ड ईयर का फर्स्ट एग्जाम था लगता है ना। हाँ, थर्ड ईयर की। थर्ड ईयर। फिर वही था, 2 बार इवैक्यूएशन था। हम्म तो एक बार तो भाई कोविड का, जैसे आपने बोला। हम्म सेकंड तो वॉर का। उस पे तो इवैक्यूएशन ट्रेन साउथ से नॉर्थ तक गया। हम्म, फिर वहां से बॉर्डर क्रॉस करके फिर वापस। ये वापस आ। How many months you here in India, and how many months you did online classes? तो वेल फॉर्चुनेटली आई डिडंट स्टे वेरी लॉन्ग इन इंडिया। तो हम्म मैंने वापस आया मार्च में। तो हम्म सितंबर अक्टूबर तक था इंडिया में। उसका बीच में आई थिंक देयर वाज ऑनलाइन क्लास टिल जुलाई। हम्म जुलाई स्टार्टिंग, फिर जुलाई अगस्त तो वैसे ही छुट्टी था। हम्म तो आई अटेंडेड आई थिंक मार्च अप्रैल मई जून, 4 months हम्म worth of online classes because I couldn't go back. हम्म Then July August I was छुट्टी, was holiday. Then हम्म September October, by October end I went back to Ukraine. हम्म। कोविड का तो कुछ कर नहीं सकते, वो भी कभी भी आ वो सकता है, तो लेकिन हाँ, ये वो वॉर तो का जो है। हाँ, सबका हट गया था उसमें। वो ये वॉर का जो है, मतलब बच्चों को डिसाइड करते वक्त मतलब एक सेफ कंट्री चूज करना चाहिए, क्या लगता है आपको? देख, वॉर कभी भी कहीं पे भी हो सकता है, वो हमारा हम्म हाथ में नहीं है। टू हाथ बी में नहीं। ऑनेस्ट, सिचुएशंस वर काइंड नॉर्मलाइज्ड, इट वाजंट वेरी, एकदम से स्टार्ट हो गया था। तो हम्म इवन नहीं तो हम खुद ही भाग लेते इफ इट वाज दैट हम्म बैड। तो या वही तो हुआ, इट वाज अ बिट टू सडन एंड नोबडी एक्सपेक्टेड इट। हम्म एंड इफ वी वर एबल टू थिंक ऑफ इट, थोड़ा आगे पता रख सकता था, तो लाइक ओके, इन अ वीक मतलब थिंग्स आर गेटिंग वेरी हीटेड, सो आई विल हैव टू मूव। तो हम्म ऐसे था तो वी कुड हैव मूव्ड। सो हम्म एंड वैसे द एम्बेसी वाज अ बिट इन अ टाइट पोजीशन। हम्म तो मतलब बहुत कुछ था उसमें, बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। हम्म आई बिलीव देयर आर अ लॉट ऑफ अदर स्टूडेंट्स हु कुड explain ये scenarios हम्म, या better than me. वही। ओके, नेक्स्ट हम और बाकी फैमिली से दूर रहना वगैरह। हाँ, ये तो है, स्पेशली खाना इज वन इंटीग्रल पार्ट, क्योंकि जाके हम्म जो मेन चीज है ये है, खाना और कपड़े धोना। हम्म, भाई इससे लाइक द टू थिंग्स यू विल ऑलवेज थैंक, मतलब घर पे जब था। घर घर भाई पे सब हो जाता है, वही, कर देती क्योंकि है मम्मा, सब हमें उधर जाके खुद ही करना पड़ता है। भाई वही, क्योंकि हम्म एक तो खाना जब खुद से बना लेता है, और हम्म मेस छोड़ के जब खुद से बनाना शुरू करते हैं, मतलब यू हम्म हैव टू मेक श्योर यू हैव द मसाला, हम्म तेल वगैरह सही डाल रहा है, या हम्म तो मतलब मसाला खत्म हो गया हो कि कहाँ से ले पाएगा। एक तो हम्म काफी लोग घर से लेके आते हैं, बट देन फिर भी आई थिंक मैंने ऐसे एक बार था कि मैंने एक साल वापस नहीं आया था इंडिया। कोविड के बीच में। या सो मतलब मसाला खत्म ही हो गया, मिर्ची भी खत्म हो गया। सो आई हैड टू ऑर्डर, जो ऑर्डर किया उसमें मतलब ठीका ही नहीं है, बस कलर है इस पे। उधर लोकल मसाला जो मिलते हैं वो अच्छे नहीं रहते। फिर दूसरा ये था, मेस बंद हो गया, तो खाना हम्म खुद ही बनाना पड़ा। तो हम्म तभी मतलब याद होता है, मतलब तब मतलब धीरे धीरे ब्रेड और अंडा से स्टार्ट किया। हम्म, आई थिंक वही सबका वही का स्टार्टिंग पॉइंट वही है। फूड है। अगर एक तो वैसे सो जाओ बिना कुछ खाए, नहीं तो अंडा ब्रेड खा के सो जाओ। वही, फिर दोस्तों से मिलके धीरे धीरे थोड़ा क्या है, एक्सपेरिमेंटिंग स्टार्ट किए फिर किचन हम्म में। फिर हम्म धीरे धीरे समझ गया, मतलब कुकिंग कुछ गूगल किया, फिर कुछ मेनली यूट्यूब से सीखा। वही फर्स्ट ईयर के डेज याद आ रहे हैं मुझे, कैसे खाना बनाता था। लास्ट ईयर में 6 ईयर तक आने तक खाने में प्रॉपर मतलब सब कुछ बना सकते हैं अब। हाँ वही, टुवर्ड्स द एंड हम तो बिरयानी तक बना लेते थे आराम हम्म से। और हम्म ये भी है, लाइक हमेशा हॉस्टल में कोई ना कोई होगा, एक बंदा जो बढ़िया बना देता है खाना। हम्म, हर बार जैसे like, किसी को भूख लग रहा है या किसी को खाना बनाना है, उसको हम्म, पकड़ो भाई वही। लेकिन एक खाना बनाने में एक चैलेंज है कि ये जो एक दिन बनाते हैं, 2 दिन बनाते हैं, लेकिन एक दिन बहुत टायर्ड होके आते हैं क्लासेस से, तब थोड़ा भी मन नहीं रहता, लेकिन बनाना हाँ, ही हो।
तब प्रॉब्लम हम्म, होता है। और बाहर ये तो जाके है। खाना है तो क्या, बर्गर केक नहीं तो केएफसी यही मिलता है उधर बाकी। बात ये ना, बाहर का खाना ठीक है, कभी कभी खा सकता है, बट देन वही है उसमें जो फ्लेवर और जो कंफर्ट है ना, जो घर घर पे बैठ के खा रहा है, खुद का रूम में वो बैठ के खा रहा है, हम्म, वो नहीं मिलेगा। क्योंकि नहीं। वहां पे ऑलरेडी ठंडा है बाहर, और हम्म खाना तो बाहर तो महंगा ही तो है। हम्म और और ये भी है, मतलब वो कंफर्ट नहीं है, मतलब बेड पे बैठ के कोई मूवी हम्म देखते हुए खाना, मतलब दोस्त के साथ मिला के, मतलब पीछे बैठ के हम्म, खाना, यू मिस दैट फन पार्ट। हाँ, वो फन पार्ट भी है और फूड भी उतना अच्छा नहीं रहता उनका। और एग्जैक्टली है। ये कोल्ड विंटर में बाहर जाना ये करना मतलब डिफिकल्टी है अगर। वही, और बड़ा बड़ा मेहनत से वापस आते यूनिवर्सिटी से घर तक, बर्फ में हम्म, कभी इसमें डी रूट करके या क्यों ही जाना है। इससे भी बेटर, मतलब आई थिंक मैं तो सीधा सो लेते थे। वही करते थे ज्यादातर। ओके, एंड आपको क्या लगता है कि व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स स्टडीइंग अब्रॉड? सो mainly a lot of culture exchange, language exchange. You like बहुत कुछ, got to know a lot of people या उसमें। and कुछ लोग है, मतलब they're not Indian, but then काफी integral scenarios था लाइफ में, तो like ये लोग they help me out, मतलब a lot of tough times, एग्जाम्स पास होते वक्त, ग्रुप स्टडी। तो मेरा एक दोस्त था नाइजीरियन, उसका घर पे था सब। तो एंड a lot of different cultures, different लाइफ सिनेरियोज, बहुत चैलेंजेस था। और ये भी है कि अभी मैं ये कह सकता कि अकेला कहीं भी भेजो, आई विल लिव, आई एम श्योर। खुद से खाना बना सकता है, आई नो हाउ टू मैनेज माई फाइनेंसेस, आई नो हाउ टू टेक केयर ऑफ माई ओन स्टफ, लाइक रेंट देना, बिल्स पे करना, अलग कपड़ा धोना, फाइंड माई ओन प्लेसेस, या कहीं कोई सामान खरीदना है, बाहर अकेले जाना है, जाके आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, आई विल मैनेज एवरीथिंग। तो ये एक चीज है, आई फील एवरी स्टूडेंट दैट हैज गॉन आउट स्टडीड आउट, दे विल दे विल दे मैनेज। या तो ये एक कैपेबिलिटी है, आई एम प्रीटी श्योर अबाउट दैट। सो फिर वही है, दी एबिलिटी टू मेक कॉन्टेक्ट्स हर जगह। तो आई हैव अ फ्रेंड हु जस्ट पास्ड प्लैब एंड इज जॉइनिंग इन लीस्टर सिटी। ही इज फ्रॉम टुनीशिया, आई थिंक ही इज फ्रॉम टुनीशिया, वो तो अरब ही है। तो मेरे से कह रहा था कि मैं भी प्रिपेयर करके, मतलब ही विल हेल्प मी आउट विद सम रेजिडेंस एंड स्टफ, जब मेरा प्लैब वन होके। सो लाइक ऐसे, मतलब दे हैव अ लॉट ऑफ पर्सपेक्टिव्स, दे विल या हेल्प यू आउट। इवन बहुत। एक बंदा है, वो तो एएमसी पार्ट वन पास हो गया। तो लाइक ऐसे, सो वी एक्सचेंज नोट्स। तो मेरा एक प्लान है टुवर्ड्स उस साइड, देन अब अभी एएमसी अब एएमसी, ऑस्ट्रेलियन मेडिकल काउंसिल का। तो आई हैवंट रियली पोस्टेड, बट आई एम जस्ट प्रिपेयरिंग। पहले तो ये इंटर्नशिप खत्म करनी है, तो उसका बाद देखूंगा ऐसे। वही मतलब बहुत ही एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। हम उधर हाँ। सीखने जाते। इंडिया की भी बहुत सारे जगह से फ्रेंड बनते और अब्रॉड में हम्म, भी बहुत सारे दूसरे दूसरे कंट्री से बहुत सारे फ्रेंड्स बनते, ये तो कॉन्टेक्ट्स बनते। है, क्योंकि अभी पिछले दिन आई वाज इन दिल्ली एंड हैदराबाद, और मतलब आई वाज स्टेइंग एट माय फ्रेंड्स प्लेसेस। ऐसे हम्म नहीं था कि मेरे को होटल लेके मतलब कहीं दूर रहना पड़ा। आई वाज विद हम्म माय फ्रेंड्स, देयर फैमिली, एंड मतलब उन्हीं का साथ घूमा, लाइक एक दो हफ्ता मैंने पूरा घूमा, दिल्ली तो पूरा देखा मैंने। हम्म दिल्ली मतलब कुछ चीजें हैं जो यू नो पीपल गो, दे वॉच द चार मीनार, सीपी, हम्म कनॉट प्लेस वगैरह। या यू लुक एट द एक्सक्लूसिव प्लेस, बट देन व्हेन यू नो पीपल वहां का ही, समथिंग लोकल पीपल या या यू मतलब तेरे को लेके, मतलब ऐसे ऐसे जगह घूमेगा कि मतलब ओनली दोज हु स्टे देयर विल नो। या बट सिंस आई एम नॉट स्टेइंग देयर, ये तो मेरे लिए एक वेरी बिग यू नो कल्चर एक्सचेंज, लाइक वेरी इंटरेस्टिंग, हाँ लाइक एक ये पालिका। इंडिया मैं इंडिया में भी हमें इतना। बहुत है। तो एंड इवन इन हैदराबाद, तो हैदराबाद इज अ बिग सिटी टू। या एंड वहाँ पे भी देयर इज अ लाइक a few friends, उन्हीं का साथ था। सो खाना था मेनली, पूरा हर दिन भाई खाना ही खाना, कुछ नया नया जगह खाना, स्वीट्स, फिर शाम पे दूसरी जगह, रात पे दूसरी जगह, ऐसे ऐसे पूरा घूमा फिर।
फिर चार मीनार का वहां गया, वहां पे भी खाने का कुछ चीजें था। फिर उसका बाद बैंगलोर गया, तो कर्नाटक में कुछ दोस्त था, ये केएमसी का, ये इसके लिए ही गया था, लाइक प्रोसीजर के लिए। तो ये उन्हीं लोग, वो लोग भी आए, गाड़ी लेके आए। हम्म, तो मतलब यू गेट टू मेक अ लॉट ऑफ कॉन्टेक्ट्स ऑन अ नेशन वाइड, एंड जब चांस मिलेगा, इट्स अ लाइक यू कुड ऑलवेज मीट देम। कई यू नेवर बी स्ट्रैंडेड इन अ या सेंस। कोई भी स्टेट तेरे को घूमना है, तेरा दोस्त तो वहां ही होगा, लाइक होगा कोई ना कोई। होगा ना, होगा, यस। क्योंकि बहुत जगह से आते हैं उधर, और अच्छे यस। दोस्त बन जाते हैं। वही, अगर हम कंपेयर करें अपने जो इंडिया आई एम जिस इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट जो अपने फ्रेंड्स वगैरह थे, तो हम्म। उनसे इस एरिया में अपने को बहुत ही ज़्यादा एक्सपोजर मिला है। मतलब उनके इतने हाँ। फ्रेंड्स नहीं रहेंगे इंडिया में, हाँ, अब्रॉड में इससे। यूजली इंडिया में जो पढ़ता है उनका 6 से या 5 साल मेनली इन उसी रीजन में ही होता है। मतलब हम्म, उस लाइक जो कॉलेज में है बस, हम्म, जो उस स्टेट का है बस। मतलब वही, बाहर का कोई भी एक्सपोजर मिलना इज यूजली आफ्टर देयर हाउस एजेंसी, जब जॉब के लिए जा रहा है, या जब मतलब ऐसे कोई लाइक प्लेस पे वर्क कर रहा है, तो कोई ना कोई बाहर से आया, तभी दे विल गेट टू मीट समवन फ्रॉम आउटसाइड मोस्टली। एंड एक और डिफरेंस ये कि हमारे लिए तो वी आर aware of a lot of things on an international scale, या, ताकि if somebody asks you about going to UK, यूरोपियन यूनियन और ऑस्ट्रेलिया, हम तो कह सकते हैं, क्योंकि वी आर दस दीज आर सम ऑफ द फर्स्ट थिंग्स दैट वी चेक्ड जब हम्म, बाहर पढ़ रहा था। तो इवन आगे के लिए भी आई नो अ लॉट ऑफ एफएमजीज, हम्म, मतलब दे आर परस्यूइंग बाहर जाना, क्योंकि हम्म, उनका करिकुलम ही ऐसे था, हम्म, यूरोपियन करिकुलम पे वही है। तो बट देन आई नो अ लॉट ऑफ अदर सक्सेसफुल न्यूरोलॉजी। एक सीनियर है, ही हम्म, गॉट हिज पीजी एंड ही इज अ न्यूरोलॉजी पीजी स्टूडेंट अभी इन केरला। ओके, तो ऐसे भी लोग हैं। हम्म, तो यू हैव अ वेरी बिग एक्सपोजर उस पे, कल्चरली। एक्सपोजर, इंडिया में ब्रॉड। आकर भी अच्छे, मतलब ये इंडिया में भी अच्छे जगह कर रहे हैं पीजी, और बाहर भी, मतलब जो आई एम एफ एम जी थे इंडिया हम्म। के अपने, मेरे भी बहुत सारे फ्रेंड्स है। अभी एक ने एएमसी कर रहा है वो, हम्म। वही। एंड व्हाट कॉन्स। कॉन्स ऑफ गोइंग अब्रॉड यही मेनली यही है कि um, एक तो एक्सपेंसिव है, इट्स अ वेरी अंडररेटेड फैक्ट, लाइक लेस एक्नॉलेज्ड फैक्ट, क्योंकि बाहर जाना इज नॉट चीप, इट इज वेरी एक्सपेंसिव। A lot of people think you go abroad because it's cheap. It may be, but then life, living cost सब कुछ मिला के, like it is equivalent to studying in a private college यहाँ पे। सेकंड ये है कि में वापस हाँ, हाँ, यस, रिलेटिवली, लेकिन हाँ, वो सब लगभग। मिला के ठीक है, लेकिन मतलब रिलेटिवली चीप ही है प्राइवेट से, मुझे लगता है, क्योंकि इंडियन प्राइवेट कॉलेज में एक डिपेंड्स कौन सा प्राइवेट कॉलेज है। हाँ, ये वो तो है। But हम्म, then when you're desperate for a seat, when you look at finances, तब हम्म, तो एंड या, secondly ये होगा कि if those are planning to come back to India, तो हम्म, एक बिग स्पीड बम्प है एफएमजी एग्जाम। हम्म, तो मतलब काफी लोग ऐसे हैं, इवन अच्छा स्टूडेंट होके भी मतलब इस पे हटक जाता है। ये हम्म, एग्जाम पे जैसे हमने बात की, इट इज बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम अप्रोच चाहिए। हम्म, खाली पढ़ाई नहीं, खुद का कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करना, मोरल ऊपर रखना, वो हम्म, एग्जाम टाइम पे, लाइक यू हैव टू बी मोटिवेटेड। तो हम्म, वो एक एक तरह से इट्स अ ऑल राउंड चैलेंज। तो चौपन, ये एग्जाम पास होना, और मतलब इसका बाद इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना, एक अच्छा हम्म, कॉलेज मिलना, फिर 1 साल वहाँ करके फिर यू नीड टू स्टार्ट वर्किंग इन द इंडियन सेटअप, जो बहुत ही डिफिकल्ट है बाहर से आने प्रिडोमिनेटली के बाद। हम्म, ऑलरेडी चैलेंजिंग है, और हम्म, इसमें हम हमारे लिए इल भी एक्स्ट्रा चैलेंजिंग। हम्म, तो मतलब जो मेंटली तैयार है, जो रेडी है, जो मोटिवेटेड है, वो तो कर सकता है, उनके लिए तो अच्छा होगा। यस, बहुत कुछ सीखने मिलता है, एंड बात है ना, इट्स अ जर्नी। अगर
जर्नी एंजॉय करके पूरा ये करके आओगे तो इतना कुछ नहीं रहेगा। बस आपको सिर्फ डिग्री चाहिए और वापस आना है, मतलब हाँ, इतना बहुत ही टाइम लेता है ये। हाँ, ये तो तो नहीं है। हो पाएगा, फ्रस्ट्रेट हो क्योंकि जाएंगे। एक लाइक यू नीड टू डेडिकेट, हम्म। बंदा डेडिकेट करना ही होगा। वो जब वो पढ़ रहा है, 6 महीने पढ़ रहा है, तो 6 महीने छोड़ ही दे, कुछ भी नहीं। सोशल लाइफ कम करनी है, नहीं तो ना ही। हम्म। और जो भी एक्स्ट्रा करे नहीं, जिम नहीं, बस हम्म। पढ़ाई पे ध्यान दे। और कुछ टाइम चाहिए, मतलब जो बर्नआउट नहीं होना, तो हम्म। थोड़ा टहल लेना, तो हम्म। थोड़ा मतलब कुछ म्यूजिक सुनना, एक मूवी देखना। बट बात है ना, तुरंत वापस आके पढ़ाई, रिवीजन, एग्जाम्स, मतलब हम्म। जीटी, ये सब फ्लो पे। सब देना है। हम्म। क्योंकि वो चाहिए किसी भी तरह। क्योंकि बट जैसे आपने बोला, डिग्री लेके फिर वापस आना है, ऐसे इट्स नॉट दैट सिंपल। हम्म। एंड ये पूरा मतलब अब्रॉड जाके वापस आना, ये थोड़ा टाइम लेता है। मतलब इंडिया में हम्म। स्टूडेंट 4.5 years में उनका डिग्री कंप्लीट होता है। हम्म। उसके बाद 1 year में उनका इंटर्नशिप हो जाता है, तो हम्म। पूरा 5.5 years लगते हैं उनको। Yeah. हमको अ, उधर 6 year का कोर्स है। वो 6 year आने के बाद 6 months to 7 months फॉर FMG एग्जाम, Hmm. एंड देन 1 year फॉर compulsory mandatory internship. Internship. Yeah. So it takes So around seven seven and a to eight, half, 7.5 to 8 years 8 years. Yeah. And this is just for MBBS. just for MBBS. Yes. Yeah. For इसका बाद आगे पीजी के लिए जाना है। तो Hmm. बात है ना, बंदा जब वापस आते ही he'll be around, अभी तो आई एम 25। So Hmm. people are by the time पीजी मिलना है, मिलके मतलब it's not a must thing। पीजी, नीट पीजी का बाद you get the exact field that you want। Hmm. कुछ लोग हैं उनको लाइक कार्डियोलॉजी चाहिए, बट देन इट्स नॉट अ मस्ट कार्डियोलॉजी मिलना ही है फर्स्ट अटेम्प्ट में। Hmm. तो मतलब आईएमजीज के पास लाइक 1 साल एक्स्ट्रा या 2 साल एक्स्ट्रा होता है इनके लिए, मतलब एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट या 2 एक्स्ट्रा अटेम्प्ट देने में कोई दिक्कत नहीं है। Hmm. पर हमारे लिए तो मतलब ऑलरेडी उम्र तो आगे ही जा रहा है, तो यू Hmm. यू नीड टू बी एक्स्ट्रा कॉशियस, Yeah. चूज वाइज डिसीजंस चाहिए इस पे। और कैसा है कि मतलब हम FMG एग्जाम के लिए जो प्रिपेयर करते हैं, मतलब वो हम्म। भी इंटर्नशिप में थोड़ा टच रह के ये किए तो वो हम्म। थोड़ा एडवांटेज है हमको। ये तो है। क्योंकि इधर जो हमारे साथ जो IMGs प्रिपेयर कर रही है, मतलब हमारे बैच में जो इंटर्नशिप कर रहे हैं, हम्म। उनसे ज़्यादा आइडिया है अपने को जो FMG स्टूडेंट्स है, क्योंकि हमने ऑलरेडी एक एग्ज़ाम दिया है और नीट हाँ, पीजी ऑलमोस्ट रिसेंटली। सेम है। हाँ, हम्म। तो वो और थोड़ा। हाँ, लेकिन ऑलरेडी हमने उतना टाइम भी स्पेंड किया है उनसे ज़्यादा। ये तो है, हम्म। हमने 2 साल एक्स्ट्रा किया है लगभग उनसे। तो हम्म। लाइक 2 साल नहीं, 1 साल। बट देन एक चीज ये है, एफएमजी जो पढ़ा है उनको ये पता होगा कि मतलब पीजी डिफिकल्टी कितना होगा। हम्म। क्योंकि एक लाइक कहावत है कि the questions are as difficult, most times the questions are as difficult as in NEET PG, हम्म। not all but then a certain segment of questions। हम्म। तो जिसने तैयारी की है उसको पता होगा कि लाइक कैसे नीट पीजी भी प्रिपेयर करनी है। हम्म। तो मतलब इवन आफ्टर अ ईयर व्हेन यू आर गोना सिट फॉर नीट पीजी, हम्म। you have that knack that you did with FMG that you can use। Yeah. But और। like there's one unfortunate thing, हम्म। FMG देके if we were able to give NEET PG तुरंत, जो हम्म। प्रिपरेशन या जिस लेवल पे हमने प्रिपेयर किया उसमें, we could have attempted NEET PG in a good way। Yeah. I It's a personal feeling, I might be wrong। Yeah, same with me also, because we will forget all the things and all the Exactly। efforts will, you know, जो go waste. थियोरेटिकल नॉलेज है ना, जो एफएमजी Mm. और नीट पीजी के लिए जरूरत है, we Mm. learn all of those, but then by the time when we are done with internship we are rather more clinically oriented than the theory that is required for passing the exam। Yeah. तो ये एक बफर जोन बन जाता है जिसपे we get a negatively influenced, मतलब we become clinically better, but then Mm. the theory that is required to, or that we learned during the FMG exam, ये तो Mm. काफी भूल जाता है। भूल जाते हैं। हम्म। एंड अभी NMC का तो एडवाइसरी आई थी इसके पहले, सो दे आर प्लानिंग टू चेंज द
like NEET FMG exam and NEET PG exam into the next. So Mm. yeah, so future aspirants who are planning to take, so for them it will be like how they look at it. It depends on them. It Yeah, will be the one exam for both licensing and the PG. PG. Yeah. Yeah, It is a very interesting. It's a debatable topic, to be honest. yeah, Because in a way, certain FMGs will get to satisfy their egos. एक mm, तो like both of them are fighting, want to fight the same battle. same, yeah. तो इस पे वो है ना, जब IMGs कहता है they are better than FMGs, कुछ Mm, FMGs कहता है, तो you have a battle in which you have a common ground. yeah. So this will help, वो एक ego clash. It will Mm, help solve it. Second, opportunities are like equal अभी. mm, तो इसमें एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट हो गया. तो mm, दोनों साइड मतलब इट डिपेंड्स. अभी इट्स नॉट ऑन द एग्जाम डिपेंडेंट साइड. दोनों IMGs और FMGs आर ऑन द लाइन. mm, मतलब उन लाइक खुद पे होगा. mm, तो लाइक एंड वही है, बहुत स्टैंडर्डाइज्ड हो जाएगा. mm, बट ऑल्सो अनदर थिंग आई फील इज द सीट्स. mm, लाइक सीट्स वो है ना कंपटीशन. तो mm. I feel there's going to be a lot more competition for PG seats abhi, once you do that. Okay. क्योंकि the number of student bases who are attempting the exam वो आगे बढ़ रहा है ना. Mm, Irrespective of the number of मतलब number of students IMGs who are passing out mm, वो है. So mm, number of FMGs जो pass out किया, they mm. both of them are going to clash for the same set of seats. It's तो उसमें yeah. competition will be a lot more. मतलब even वहाँ पे competition ये नहीं कि you are competing against an FMG, यू आर कम्पीटिंग अगेंस्ट अ होल पूल. मतलब जैसे नीट यूजी में हमने लिखा. Mm. ऑलमोस्ट नीट पीजी भी वैसे ही हो जाएगा लगता है थोड़े वैसे एग्जैक्टली या क्योंकि हर नीट साल पीजी. एफएमजी स्टूडेंट भी बढ़ ही रहे और इंडिया में जो ये प्राइवेट कॉलेजेस भी बढ़ रहे हैं तो या पीजी के लिए कंपटीशन बढ़ने वाला है यहाँ से आगे ये तो है. But then वही है, there's a lot of pros and cons. It's a debatable topic. मतलब which side benefits or which side doesn't, हम्म, आगे के लिए कैसे होगा. हम्म। और ये जो एक एफएमजी बाहर करके आए हुए रहता है मतलब थोड़े वो कम कम ये आते हैं हमको मतलब एफएमजी आईएमजीज एफएमजीज के लिए तो एक इक्वल ये हो जाएगा मतलब मेरिट पे आगे बात रहेगी उधर से एक एग्जाम होने के वही लिए एक अच्छा है वही. और उसके साथ ही जो आईएमजीज रहेंगे उनको भी ये एग्जिट एग्जाम देना पड़ेगा और लाइसेंस के लिए और एफएमजीज हम्म को भी देना पड़ेगा जो या तो और एक एडवांटेज है कि एफएमजीज के लिए कि आई इंडिया में किए तो भी देना ही है अब्रॉड में करके आए तो भी एग्जाम देना ही है हम्म तो वो एक बेनिफिट है थोड़ा और और क्या उसी के साथ हाँ ये दोनों मतलब सीट्स बढ़ ही रहे और मतलब डॉक्टर्स भी बढ़ जाएंगे और थोड़ा अपॉर्चुनिटी वगैरह भी मतलब कम होंगे वही मतलब इंजीनियरिंग जैसा कंपटीशन. हाँ हम्म कंपटीशन बढ़ रहा है ये बढ़ रहा है मतलब हमारी फील्ड अभी तो करंटली अंडर सर्व्ड है मेनी एरियाज बट हम्म फ्यूचर में अभी जो इंजीनियर्स का हाल है वैसे डॉक्टर्स का भी हो सकता है तो वो जो तो हाँ है. चाय तो वाला वो है आपने क्या किया? अरे MBBS करके आया है. अच्छा, पीजी नहीं मिला तभी चाय बना रहा. अच्छा ठीक है. तो जैसे जो बीटेक स्टूडेंट. जूनियर से तो उनको ये सब फोकस में रख के उनका डिसीजन लेना है मतलब ऐसे नहीं कुछ नहीं है तो एक चलो आइडिया कर ले होना है आगे के लिए. आगे के लिए मतलब मैं तो मेरे जूनियर से एक बात हमेशा ये पूछते हैं, MBBS लेने से पहले ये पूछते हैं कि मतलब व्हाई डिड यू टेक MBBS, हम्म, पैसा या सर्विस. हम्म, ये एक्चुअली इट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन जो खुद से सब पूछना होता है कि हम्म, मतलब तेरा इंटेंशन क्या है, मतलब ये हम्म, पढ़ने से. क्योंकि वो होगा उनका मोटिवेशन आगे के लिए, उनका पर्सपेक्टिव, ड्राइविंग फोर्स. हम्म, और एक बार MBBS कर लिया, उसका बाद उसका पर्सपेक्टिव इज व्हाट इज गोना ओपन डोर्स फॉर देम आगे के लिए. हम्म, लाइक पैसा चाहिए,
तो उस हिसाब से ही शुड ट्राई टू वर्क ऑन इट. हम्म, बट जिसको सर्विस चाहिए तो वो उसका स्किल्स डेवलप और करके ही कैन स्टार्ट हिज ओन कोई भी मतलब क्लिनिक या रूरल साइड सर्विस करने जा सकता है. देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल, इंडिया नीड्स अ लॉट ऑफ मेडिकल केयर. हम्म, रूरल साइड अभी बहुत नेग्लेक्टेड एरियाज है. हम्म, एंड वो जैसे आपने बोला अंडर सर्व्ड. हम्म, तो मतलब टू अंडरस्टैंड वंस पोटेंशियल दे शुड फर्स्ट रिकॉग्नाइज क्यों मैंने ये फील्ड स्टार्ट किया. हम्म. तो वही इट्स अ जर्नी. जर्नी मतलब you should enjoy the journey, not the destination. Yeah, and to enjoy the journey, we must have the interest and we must have our clarity why we are here. Mm, So, yeah, तो exactly. चूज करते ही अच्छे से चूज करना है, नहीं तो ये मतलब बहुत ही टाइम टेकिंग है। और Mm, तो आइडिया होना चाहिए पहले। मोस्टली क्या बहुत. होता है कि हम 12th होने के बाद हमें एक तो पता होता है कि एक तो इंजीनियरिंग की एग्जाम रहती है, नहीं तो एक तो मेडिकल मेडिसिन. एग्जाम रहती है। बाकी दूसरा सोचते ही नहीं, और हमारी सोसाइटी सारे रिलेटिव्स वगैरह सब यही हाँ. पूछते हैं। तो हम ये. बाकी कुछ सोचते ही नहीं और यही कर जाते हैं। और आने के बाद 2-3 साल में पता चलता है कि वो ऐसा ऐसा सब है, तब थोड़ा प्रॉब्लम हाँ, होता है। तो ये तो है. हम्म, जो हमारे जूनियर्स अवेयरनेस. ये प्रॉब्लम्स से अवॉइड कर सकते हैं, पहले थोड़ा रिसर्च करके उन्होंने एक इन्फॉर्म डिसीजन लिया। वैसे देख, 10th, देख 12th तक वेट नहीं करना होता है. यू शुड बी फेमिलियर विद अपॉर्चुनिटीज अब्रॉड या हम्म, कोई जॉब या किस फील्ड पे जाना है बहुत पहले से ही. हम्म, मतलब ये लाइक पहले तो मेरे को ये पता था. मैंने 10th का बाद जब बायोलॉजी स्ट्रीम लिया, बस हम्म, प्रिटी श्योर मेरे को यही स्ट्रीम चाहिए. या लाइक इंडिया में नहीं तो बाहर किसी भी तरह आई जस्ट वांट टू गो फॉर दिस. हम्म, मेरे तो डिसाइडेड था पहले. तो हम्म, मेरा सारी डिसीजंस इसका ऊपर था, ओरिएंटेड था. हम्म, तो मतलब आई फील ये स्कूल्स में भी और आगे इवन फैमिलीज और पेरेंट्स शुड हेल्प फेमिलियराइज लाइक ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज हम्म, डाइवर्सिफाइड. मतलब इफ यू वांट टू मेक मनी देयर इज अ लॉट ऑफ वेज यू कैन मेक मनी. या, या आज का जमाने में मेकिंग मनी इज नॉट डिफिकल्ट. हम्म, बट यू नो डेवलपिंग a skill which is life saving और हम्म, a skill that is very dynamic जिसमें हम्म, कुछ भी कर सकते हैं. तो you can be like a teacher, a helper, a doctor. You're basically playing God. हम्म, तो ऐसे स्किल डेवलप करना इट टेक्स डेडिकेशन, इट टेक्स अ लॉट ऑफ डिसीजंस जिस पे तू बहुत सैक्रिफाइसेस करना पड़ेगा. तो मतलब the students should be, you know, should have a idea from school. मतलब 10th नहीं 11th 12th तक जब उसने उसका स्ट्रीम सेलेक्ट किया, उसने हम्म, आधा से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज या प्रोफेशन उसने ऑलरेडी काट लिया. हम्म, जिसने साइंस ले लिया वो कॉमर्स थोड़ी ना जाएगा, साइंस में ही जाएगा. जिसने हम्म, साइंस खत्म किया मतलब उस पे फिर उसको ये यूजुअली इंडिया में यही देखते हैं, मेडिसिन जा रहा है या इंजीनियरिंग जा रहा है. हम्म, तो और भी है, तो हम्म, रिसर्च थोड़ा बहुत करना पड़ेगा, ढूंढना है. या। अभी तो हमें 6-7 साल हो गए। अभी के जूनियर्स मतलब उनका जनरेशन क्या सोचता है उतना पता नहीं, लेकिन हमारे जनरेशन में तो ऐसा ही था। लाइक अभी का जनरेशन में बात है, दे हैव अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज. हम्म, दे लाइक कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो जस्ट प्रोवाइडेड. हम्म, हमारा टाइम पे याद है लाइक आई थिंक इवन फॉर मोबाइल डेटा, हम्म, अभी तो अनलिमिटेड डेटा वगैरह आया. उस टाइम पे तेरे को 1 GB खरीदना मतलब, याद हम्म, है, 1 GB 2 GB खरीदना, गूगल अभी सर्फ पूरा करना. मंथली मंथली मंथ्स का पैक आ जाएगा उसमें, 1 GB। वही. और बड़ा मुश्किल से वाईफाई आता था, अभी तो जियो फाइबर आ गया भाई. हम्म, तो मतलब इट इज, they have a lot of things that is provided, हम्म, opportunities are in front of them. But वही है, ones who look for it or like who hunt for it, उन्हीं को हम्म, ही मिलता है. जो पूछता है उनको ही देता है आजकल. या, तो वही। ओके, तो हम एंड करते हैं। बहुत ही Yeah. बड़ा हो गया पॉडकास्ट। एनी लास्ट पीस ऑफ एडवाइस फॉर हु इज प्लानिंग टू टेक MBBS abroad? Advice for, now there's a lot, बहुत है. But हम्म, then एक चीज हम है,
Difficulties will come, challenges will be there, but face it as it comes. Deal with it as it comes. तो आगे एंटिसिपेट मत कर, जब कुछ आएगा फेस इट एज इट इज, बाकी जस्ट डील विथ लाइफ कि पढ़ाई पढ़ाई कर, जब कोई डिफिकल्टी आएगा यू आर नॉट अलोन, डिप्रेसिंग डिप्रेसिंग चीजें होगा आगे, इट इज लाइफ, तो मतलब टेक इट एज इट कम्स, बाकी एवरीबॉडी विल डू वेल. मेरा ये रहेगा कि आप एक पहला अब्रॉड लेना, इंडिया में ले रहे तो इंडिया में गवर्नमेंट मिल रहा है तो ले लीजिए, नहीं इंडिया में नहीं मिल रहा और प्राइवेट मिल रहा है और नहीं तो रिपीट कर रहा है आपको, तो एक ऑप्शन है अब्रॉड में. अब्रॉड लेते वक्त एक अच्छे सा मतलब पूरा यूनिवर्सिटी अच्छा चूज करना है आपको, सिटी कंट्री अच्छा और चूज करना है. वो यूट्यूब पे इंटरनेट पे जाकर सब आपको मिल जाएगा सारा इंफॉर्मेशन, और उसी के साथ साथ ही जितना भी उधर कॉन्टैक्ट वगैरह आप उधर जो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं उनसे कॉल करके बात करके थोड़ा इन्फॉर्मेशन निकालिए और उसके बाद ही एडमिशन ले लीजिए. और उसके बाद मेरे एक्सपीरियंस से तो मैं ही बता सकता हूँ कि अगर आपने सब अच्छे डिसीजन लिया, अच्छा यूनिवर्सिटी लिया, अच्छा कंट्री वगैरह लिया, तो उधर मतलब बहुत ही ज़्यादा आपको अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह मिलेंगे जो इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स को नहीं मिलते. जैसे हमने ये पूरे वीडियोस में पहले बात किया है, बहुत सारे जगह से उधर बच्चे आते हैं, इंडिया से भी और बाहर से भी. तो ये मतलब अब्रॉड करने का उसके एक अलग मतलब फायदे है, तो वो भी है. तो ये सारी चीज़ें हैं, आप देखिए, आप इंटरनेट पे रिसर्च कीजिए, आपको पता चलेगा और इन्फॉर्म डिसीजन दीजिए. आपको कोई Yeah. बोलना था? नहीं, बस वही था, जब कोई यूनिवर्सिटी चूज करने से पहले टू चेक अबाउट इट. और एक और चीजें हैं कि यू कैन ऑलवेज कांटेक्ट जो स्टूडेंट्स वहां पे पढ़ रहा है. तो इंस्टाग्राम में देखिएगा तो कोई यूनिवर्सिटी का नाम टाइप कर, उसमें कोई ना कोई इंडियंस होगा, तो उनसे बात कर, वो हमेशा दे विल गिव यू अ वेरी क्लियर प्रैक्टिकल आइडिया वहां पे ऑन द ग्राउंड क्या सिचुएशन है, या तेरे को लाइक वेदर या रहने का दिक्कत या खाने का या कहीं एडमिशन का दिक्कत, पेमेंट्स का दिक्कत, दे विल ऑलवेज हेल्प आउट, कोई दे विल ऑलवेज गिव यू एन आइडिया ग्राउंड. तो एंड एक और चीजें हैं, व्हेन यू चूज अ कॉलेज, डोंट ऑलवेज गो फॉर अ कॉलेज दैट इज चीप, क्योंकि ए चीप कॉलेज इज नॉट ऑलवेज अ गुड कॉलेज. तो जाने से पहले जो यूनिवर्सिटी का बैकग्राउंड है वो ठीक ठाक, on YouTube या on Google, Wikipedia पे usually all the good colleges are listed. full World Health Directory वो एक वेबसाइट है, तो उसमें if you go type the university name या country name, find the university on this directory, और उस पे they will give every detail. उसमें in case यूनिवर्सिटी का नाम नहीं है तो do not go take seat in that university, क्योंकि काफी मेडिकल यूनिवर्सिटीज है लाइक ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंडिया में भी और बाहर भी, जिसका वर्ल्ड हेल्थ डायरेक्टरी में उसका नाम नहीं है. इसका मतलब इसकी उसका बेसिक लाइक एक्रेडिशन भी नहीं है टू रन एज अ मेडिकल कॉलेज. तो ऑलवेज टेक केयर, क्योंकि जब कोई जॉब के लिए बाद में अप्लाई करेगा दे विल ऑलवेज चेक इफ योर यूनिवर्सिटी इज वैलिड या कॉलेज इज वैलिड. तब सबका बाय डिफॉल्ट मतलब चेक करने के लिए दे ऑलवेज गो टू दिस डायरेक्टरी. सो एडमिशन लेने से ये देख लियो. फिर एजेंसीज ऑलवेज मेक श्योर क्या एजेंट फी कितना होगा और एक्चुअल फी मनी दैट यू हैव टू पे टू यूनिवर्सिटी, ये दोनों मतलब देयर इज अ डिफरेंस इन द अमाउंट. तो ये पता रखना इज विल बी गुड, बट आई फील इट इज ऑन इंडिविजुअल, बच्चे खुद बात करनी है, ढूंढना है. But then I feel there is a lot of people who help out with admissions article with good colleges. And yeah, I think that is all additionally. Yeah. तो यही था हमारा वीडियो. Yeah. आपको कैसा लगा ये बताइए हमें कमेंट सेक्शन में, और लाइक कीजिए, और जिसको भी इस वीडियो की ज़रूरत होगी उनको शेयर कीजिए. या Thank सो you. बाय बाय. या Bye.
Yeah, we'll speak after this video. We'll end the Okay. video here. Yeah. Yes. So bye bye. Bye bye to our audience.